Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. And friends, in today's video we are going to discuss the preliminary exam paper of Himachal Pradesh Judicial Services 2014 paper Civil Law 1. So friends, if you are new on this channel, I would like to recommend कि आप जो है इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए because it will be very beneficial for you in your preparation for judiciary and other legal exams. And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification for our upcoming videos. And if you like this video, just click the like button over there and appreciate this with your friends so that they can come to know about this channel as well. And अगर आपको हमारे efforts अच्छे लगे हों तो in addition to like and subscribe, kindly give us a super thanks. Super thanks is a way to help the content creator. Means if you like the videos, you can just donate some money to them in form of tips. Minimum starts with 20. Minimum is 20 rupees. As I always mention, paper comes like this. This is paper 1, Civil Law 1, Series A, 1 hour, 100 marks, 50 questions. And there is no negative marking. So Civil Law 1, question number 1 is, Duchess of Kingston's case is leading case on subject of res judicata. 1 is the answer. Res judicata पर है case ये. Next is 2, explanation 7 to section 11 was inserted by CPC amendment of 1976. A is the answer. Next 3, whether the pendency of a suit in a foreign court will preclude courts in India from trying a suit founded on the same cause of action. No. If it has been decided, it can operate as res judicata subject to certain condition mentioned in section 13-14 of CPC. इसका आंसर बी रहेगा, no. Next is 4, which of the following section of CPC stipulates provision for the place of institution of suit where local limits of jurisdictions are uncertain? That is section 18. A is the answer. 21 क्या है? Objection as to jurisdiction. 24 क्या है? High court power to transfer cases. And 27 क्या है? Summons to defendant. Next is 5, which of the following statement is not correct? A decree may be partly preliminary and partly final. ये बिल्कुल ठीक है. सेक्शन 2.2 जो जहाँ पर डेफिनेशन है डिक्री की वहाँ पर मेंशन किया गया इट कैन बी प्रिलिमिनरी, है ना. तो एवरी डिक्री इज अपीलेबल अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, ये ऐसे बिल्कुल ठीक है. फिर एवरी ऑर्डर इज नॉट अपीलेबल अनलेस स्पेसिफाइड इन द कोड, ये बिल्कुल ठीक है. फिर डिक्री एडजुडिकेशन ऑफ अ कोर्ट ऑफ लॉ व्हाइल एन ऑर्डर अंडर द CPC इज नॉट एडजुडिकेशन ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ. ये गलत हो गया. दैट इज ऑल्सो एडजुडिकेशन ऑफ लॉ, बट डिक्री क्या होती है? मेरिट्स पर डिसाइड होती है एंड ऑर्डर्स क्या होते हैं? वो डिफरेंट रहता है. एंड ऑर्डर क्या है? फॉर्मल एक्सप्रेशन जो कि प्रोवाइड किया गया सेक्शन 214 ऑफ CPC. तो डी इसमें आंसर रहेगा. नेक्स्ट 6, एन एग्रीमेंट बाय विच ए पर्सन एग्रीज टू वेव द बेनिफिट ऑफ एनी एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 60 CPC इज वॉइड. लॉ के अगेंस्ट भी कोई भी एग्रीमेंट जो होगा वो वॉइड होता है. बी इज द आंसर. नेक्स्ट इज 7, इन घनश्याम दास गुप्ता वर्सेज अनंत कुमार सिन्हा द सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन्स execution of decree. C is the answer. Next is 8, which is not an instance of material irregularity under section 21 rule 90 CPC. तो मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इन दी प्रोक्लेमेशन, तो ये तो ऑब्वियसली मटेरियल इरेगुलरिटी है तो वो वॉइड हो जाएगा. फिर आफ्टर सेल आफ्टर एन ऑर्डर ऑफ स्टे इन एग्जीक्यूशन, तो ये भी वॉइड कर देगा बिकॉज इट इज़ अ मटेरियल इरेगुलरिटी. ओमिशन टू होल्ड सेल इन स्टेटेड टाइम एंड प्लेस, ये भी है. ओमिशन टू सेंड अ कॉपी और डिक्री टू एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, ये नहीं है. तो डी इज़ द आंसर. नेक्स्ट 9, बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 CPC a specific provision has been made for the counter claim under order 8 rule 6A was added. D is the answer. नेक्स्ट 10, who is entitled to exemption from personal appearance in the court. देखिए इसके बारे में बताया गया है सेक्शन 133 CPC में, और उसमें जो है B, C और D ये तीनों लिखे हुए हैं. ये दीज आर एग्जम्प्टेड, ये वाला एग्जम्प्ट नहीं है. तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है एग्जम्पशन किस में है, तो ये क्वेश्चन जो है डिलीट कर दिया गया था बिकॉज ऑप्शन करेक्ट नहीं बनाया इन्होंने. या तो ये पूछता है कि हु इज़ नॉट एंटाइटल्ड होता तो इसमें ए आंसर होता, बट ये ऑप्शन रॉन्ग हो गए. नेक्स्ट 11, अंडर सेक्शन 96 CPC द कंसेंट डिक्री इज़ नॉट अपीलेबल. बी इज़ द आंसर. Next 12, a section 153B of CPC contains the provision for trial in open court. C is the answer.
नेक्स्ट 13 हु कैन अप्लाई फॉर एन इंजंक्शन, तो प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट कोई भी ले सकता है, सी इज़ द आंसर। नेक्स्ट 14 अंडर सेक्शन 152 CPC द क्लरिकल मिस्टेक्स कैन बी करेक्टेड इन जजमेंट डिक्री और ऑर्डर्स, डी इज़ द आंसर। ये रिपीट क्वेश्चन है, HPC से आया हुआ है ये। नेक्स्ट 15 इन द एक्सरसाइज ऑफ इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट, ए कोर्ट कैन नॉट, क्या नहीं कर सकते इनहेरेंट पावर्स से, एक्सटेंड टाइम कर सकते हैं, फॉर पेमेंट ऑफ कोर्ट फी कर सकते हैं जी, ओवरराइड सब्सटेंटिव राइट ऑफ एनी पार्टी ये नहीं कर सकते, रिवाइव एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन कर सकते हैं, सेट असाइड एक्स पार्टी ऑर्डर ये कर सकते हैं, तो बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 16 विच इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, ए डिक्री डज नॉट बिकम इनएग्जीक्यूटेबल ऑन द डेथ ऑफ जजमेंट डेटर, ये बिल्कुल ठीक है, जो उसकी प्रॉपर्टी है उससे रिलाइज करेंगे। फिर ए कोर्ट कैन एग्जीक्यूट डिक्री इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी सिचुएट एंटायरली आउटसाइड इट्स लोकल जुरिडिक्शन, नो, इसके लिए आपको भेजना पड़ेगा प्रीसेप्ट अंडर सेक्शन 46 CPC, तो ये वाला हो गया रॉन्ग। फिर एन एग्जीक्यूटिंग कोर्ट हैज़ नो पावर टू क्वेश्चन इट्स लीगैलिटी, ये बिल्कुल ठीक है। द कोर्ट विच पास अ डिक्री मे ऑन इट्स ओन मोशन सेंड इट फॉर एग्जीक्यूशन टू एनी सबॉर्डिनेट कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन, ये भी ठीक है। तो इनकरेक्ट कौन सा इसमें, बी इज़ द आंसर। Next 17 under the Himachal Pradesh Courts Act 1976 superintendent of district court shall be appointed by High Court, A is the answer। और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया सेक्शन 18 ऑफ HP Courts Act में। नेक्स्ट 18 अंडर द HP Courts Act who can divide Himachal Pradesh into civil districts, state government, B is the answer। और ये प्रोविजन कहाँ है, सेक्शन 4 ऑफ HP Courts Act। नेक्स्ट 19 cancellation of adhesive stamp can be done only by the person who affixed the adhesive या फिर who executes the instrument, या फिर by the person who affix और by a person who executes, दोनों कर सकते हैं, C is the answer। और एक कहाँ प्रोवाइड किया गया है प्रोविजन, सेक्शन 12 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट में। नेक्स्ट 20 अंडर द इंडियन स्टैम्प एक्ट द ड्यूटी शैल बी लायबल इन ट्रांसफर ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी, डी इज़ द आंसर। देखिए इसके बारे में मेंशन किया गया है, ये जो तीनों हैं इसमें लिखा हुआ है सेक्शन 8A ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट की कहाँ पर ड्यूटी लायबल नहीं है किस के ट्रांसफ़र पर, तो ये मेंशन किया गया, ये मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो ये जो 8A ये आया था बाय एक्ट 2022 ऑफ 1996 की अमेंडमेंट से। नेक्स्ट 21 सेक्शन 23A ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट डील्स इंस्ट्रूमेंट्स कनेक्टेड विद mortgages of marketable securities, B is the answer। Next 22 impressed stamp includes labels affixed and impressed by the proper authority, C is the answer। Next 23 whether the guarantees agreements fall within the purview of section 4 subsection 1 of Indian Stamp Act, no। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए व्हाट इज सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या है, सिंगल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन सिंगल ट्रांजैक्शन फॉर सेल, मॉर्टगेज और सेटलमेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट 24 अंडर द इंडियन स्टैम्प एक्ट इन केस ऑफ कन्वेंस इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंसेस फॉर प्रोवाइडिंग प्रॉपर स्टैम्प शैल बी बोर्न बाय द ग्रांटी, ए इज़ द आंसर। जो बायर है, सपोज अब जैसे कि आपने किसी सोसाइटी में घर लिया तो उसकी कन्वेंस डीड बनेगी पहले, ठीक है ना। तो जो सेलर है, तो आप बायर हो तो आप कौन हो, ग्रांटी हो, ग्रांटर जो है वो ऑब्वियसली नहीं पे करता, आपको पे करना पड़ता है सब, ए इज़ द आंसर। नेक्स्ट 25 ऑल इंस्ट्रूमेंट चार्जेबल विद ड्यूटी एंड एग्जीक्यूटेड बाय एनी पर्सन इन इंडिया शैल बी स्टैम्प्ड बिफोर और एट अ टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, सी इज़ द आंसर। Next 26 which section of Indian Stamp Act contains special provision as to unstamped receipts, that is section 34, C is the answer। Next 27 in determining the amount of compensation under section 21 of specific relief act the court shall be guided by the principles specified in section 73 of Indian Contract Act, A is the answer। और ये 21 के सबसेक्शन 4 में मेंशन किया गया है। Next 28 temporary injunction under section 37 is regulated by CPC, obviously A is the answer, और ये वही मेंशन किया गया है। Next 29 under specific relief act the ground for rectification of instrument is mutual mistake, B is the answer।
तो वहाँ पर क्या क्या मेंशन किए गए हैं, थ्रू फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ द पार्टीज़। तो यहाँ पर फ्रॉड यहाँ पर है नहीं ऑप्शन में एक ही है म्यूचुअल मिस्टेक। सो ऑब्वियसली ये आंसर रहेगा। सेक्शन कौन सा है, 26 SRA। नेक्स्ट 30 सेक्शन 13 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अप्लाइज टू मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 31 अंडर सेक्शन 12(2) द पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स्ड बाय both the defaulting parties and the non-defaulting party, C is the answer। defaulting and non-defaulting party कोई भी कर सकती है। Next 32 section 34 of specific relief act grants declaration of legal character या फिर any right of the parties, दोनों ही होते हैं इसमें, C is the answer। Next 33 alternate prayer of rescission in suit for specific performance is provided in SRA in section 29B is the answer। Next 34 under section 20 specific relief act contains the provision regarding discretion as to decreeing specific performance, A is the answer। Next 35 the Indian Evidence Act applies to an inquiry to determine a jural relation between persons, D is the answer। Next 36 which section of Indian Evidence Act is substituted for the old section by IT Act, that is section 39, B is the answer। Next 37 which of the following section of Indian Evidence Act deals with civil cases, that is section 23, D is the answer। Next 38 what is not correct regarding admission, admission may be documentary, ठीक है। all confessions आर एडमिशन बट ऑल एडमिशंस आर नॉट कन्फेशन, ये बिल्कुल ठीक है। एडमिशन रिलेट्स टू सिविल ट्रांजेक्शन ओनली, नो ये गलत है। फिर एडमिशन में बी प्रूव्ड अगेंस्ट द रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट ऑफ मेकर, ये ठीक है। तो सी इसमें रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट 39 द केस ऑफ बुद्धसेन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी इज रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन परेड, ए इज द आंसर। Next 40 what is correct in reference to dying declaration, it is a weaker kind of evidence, not a strong evidence, it is substantive evidence। फिर it cannot form basis of conviction without corroboration, ये wrong है। it can basis, फिर है it stands on the same footing as type of other evidence, ये से बिल्कुल ठीक है। फिर it is a verbal statement only, no it can be written, ये हो गया wrong। तो उसमें C correct है, C is the answer। dying declaration का प्रोविजन कहाँ पर, सेक्शन 32(1) of Evidence Act। ऐसे 41 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सेप्शन टू द रूल अगेंस्ट हियरसे, एडमिशन है यस, एंट्रीज इन पब्लिक रिकॉर्ड यस, स्टेटमेंट कंटेनिंग पब्लिक डॉक्यूमेंट्स यस, जो भी कुछ रिटर्न में होगा वो रूल अगेंस्ट हियरसे हो गया। फिर आंसर क्या रहेगा इसमें, नन ऑफ द अबव, डी इज द आंसर। नेक्स्ट 42 सेक्शन 114 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद प्रिजम्पशंस ऑफ फैक्ट्स, ए इज द आंसर। नेक्स्ट 43 सेक्शन 108 प्रोवाइड्स प्रिजम्पशन फॉर presumption of death, C is the answer। Next 44 a dumb witness who gives his evidence in writing in open court is called as oral evidence, B is the answer। section कौन सा है, 119 of Evidence Act provides the same, dumb witness। Next 45 section 13 of Indian Evidence Act applies to public and private rights, A is the answer। Next 46 in case of State of Bombay versus Kathi Kalu, the Supreme Court judge the validity of section 73 of Indian Evidence Act, B is the answer। जहाँ पर वो स्पेसिमेन मांगते हैं ना, स्पेसिमेन सिग्नेचर और राइटिंग और अदर थिंग्स। Next 47 in which case it was held that identification parades do not contravene article 20 का 3 of Constitution of India which requires that no accused shall be compelled to witness against himself। तो ये केस था प्यारेलाल वर्सेस स्टेट, A is the answer। Next 48 by which amendment section 113A was inserted in Indian Evidence Act, तो वो थी क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 1983। जो 113B है वो आया था 1986 में। Next 49 under section 45 of Indian Evidence Act the opinion of expert cannot be on question of Indian law, बाकी सब पे हो सकता है। इंडियन लॉ के लिए क्या ज़रूरत है, जब जज भी इंडियन है, व्हेन जज एंड जो एडवोकेट्स हैं वो जानते हैं इंडियन लॉ, सी इज़ दी आंसर।
Next 50, under section 44 of Indian Evidence Act, evidence of judgment, order or decree can be challenged on the ground of fraud only, collusion, incompetence of the court. तीनों पे हो सकता है, तो D इसका आंसर रहेगा. So friends, here we have discussed all the questions of preliminary exam paper of Himachal Pradesh Judicial Services 2014 paper Civil Law 1. अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशंस हो, कोई एडवाइस हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं. वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और एफर्ट्स हमारे अच्छे लगे हो तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट आवर चैनल एंड वो भी बेनिफिट ले सकें. एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हों तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब, काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स. Super thanks is a way to help the content creator. Means if you like the videos, you can just donate some money to them in form of tips. Minimum starts with 20. Minimum is 20 rupees. So friends, thanks very much for watching this video. Thank you.